Welcome, Taurus people. Welcome to my reading. It's a reading about your life in general energy check-in. ओके क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी एरिया हो, कुछ भी स्फीयर्स हो, सब स्फीयर्स के बारे में या फिर पर्टिकुलर जो स्फीयर, क्योंकि ये टॉरस का रीडिंग हो रहा है तो आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वही उठ के आएगा from the divine universe, from the divine guidance. Okay, so please pay heed to the guidance, but again मैं बोल रही हूँ, take it as it resonates with your own life, with your own life story. It's not a love reading, it's a general reading about your life, okay, in totality. I'm using 4 decks out here. Okay, these cards I have already shuffled, and this is the last deck that I'm shuffling. So I'll start the reading once I'm done with shuffling. I'm using both the decks, as I've already mentioned, Tarot and Oracle, to further enhance your reading, to have a detailed, picture and a very clear picture. It will enhance the reading even more. Okay, so please take it as it resonates with you. Do not try to unnecessarily fit and force the reading into your life. Okay, Taurus people. Fine. Starting with your reading. The first tarot card is of 5 of Swords. Okay, Taurus people, this card is of 5 of Swords. Okay, 5 of Swords. 5 of Swords. Swords are all about actually mental, mind ka matters hai. Communication, mind, mental strength, mental worries, mental thoughts. Okay, so 5 of Swords particularly denotes conflict, competition, winning at all costs. Conflict, competition, winning at all costs. The victory will make your life indeed more difficult as others have lost the faith in you. The victory will make your life indeed more difficult as others have lost the faith in you. You need to realize that winning is not always important when it costs your peace and relationships. So very true, Taurus people, so very true. You need to realize that winning is not always important. जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है. शांति सबसे पहले. शांति को चूज़ कीजिए प्लीज़. लड़के झगड़ के जीत के आप क्या हासिल कर लेंगे? शांति? Certainly not. So शांति को चूज़ कीजिए when it comes to your relationships, when it comes to peace. Do not So Taurus people, don't compromise your peace. That's the bottom line. जीतने के चक्कर में अपने पीस को दाव पे मत लगाइए. It's not wise enough, isn't it? Certainly not. क्योंकि मेंटल वरीज से आप फेस कर रहे, उसके पीछे कुछ पास्ट रिजनमेंट का रीज़न हो सकता है. बेसिकली यू आर वरिंग अ लॉट. माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके माइंड्स में. मे बी 3D वर्ल्ड में उतना नहीं हो रहा है जितना आपके माइंड में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स. स्वर्ड्स, जैसा मैंने पहले कहा, स्वर्ड्स आर ऑल अबाउट मेंटल इश्यूज. कंपटीशन में आप फंस गए. कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आप में जग रहा है. मेंटली थॉट्स जग रहे हैं. आपको जीतना ही है किसी भी तरह से.
किसी भी तरीके से, एट ऑल कॉस्ट्स। तो ये आपको क्या और सुकून दे रहा है, आप ही बताइए। इज इट गिविंग यू मोर पीस और इज इट लेसनिंग योर पीस, माय डियर टॉरियन? सोचिए इस बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, another tarot deck to further get an in-depth reading of yours. Karma, judgment. See, never judge anyone. Never judge anyone. इसीलिए शायद हो रहा है आपके मन में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मनोभाव जग रहा है आपके अंदर, लड़ने का, लड़ाई करने का, यू नो। क्योंकि जज करेंगे तो लेट गो नहीं कर पाएंगे। शांति कैसे मिलती है? जज करने से मिलती है या लेट गो करने से मिलती है? टेल मी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, isn't it? Hope you're getting my point. So karma, judgment, this is denoting your judgmental nature karmically. नेवर जज एनीवन। मे भी हो सकता है आपके इसी नेचर के वजह से कार्मिकली आपको ये फेस करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। वरीज भी तो भुगतना ही है। सबसे बड़ी बात तो वही होती है, चिंता, दुश्चिंता। 3D वर्ल्ड में उतना शायद देखा नहीं जाता है या पाया नहीं जाता है जितना मेंटली इंसान बॉग डाउन हो जाते हैं, यू नो। तो नेवर जज एनीवन। सबको एक्सेप्ट कीजिए। जो बंदा, जो बंदी जैसी है, जैसा है, उसे उसी तरह से, उसके हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए। गॉट माई पॉइंट? उसके हिसाब से, उसकी तरह एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपको सुकून मिल सकता है। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे बारे में, इसका बर्ताव मेरे प्रति ऐसा क्यों है, इसका बर्ताव उसके प्रति ऐसा क्यों है। कभी कभी तो इंसान वो भी जज करने लगते हैं कि आपके बारे में उसके भले ही कुछ नहीं बोला है, दूसरों के बारे में बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप घुस गए उसमें। इससे आप में कॉम्पिटिटिवनेस पैदा हो रहा है, एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट पैदा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहा है, मेंटल वरीज पैदा हो रहा है। फालतू का है ये सब ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों का। जस्ट बी एंड लेट इट बी, लिव एंड लेट लिव। दिस शुड बी योर मंत्रा ऑफ लाइफ, Taurian people. This should be your mantra of life. Live and let live. Do not judge anyone. This is what divine guidance karma is telling you. Moving on to the next card, it's a water alchemy oracle. It's a water alchemy oracle. It's telling hydration. See, hydration. Hydration in the sense, it denotes or it means satisfy your spirit. प्यास लगता है तो हम लोग कैसे बॉडी को हाइड्रेट करते हैं पानी पी के, वैसे ही अपने सोल को हाइड्रेट कीजिए, सोल को, स्पिरिट को हाइड्रेट कीजिए। सेटिस्फाई योर सोल, सेटिस्फाई योर स्पिरिट। ये सब करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको जितनी भी शांति बची कुची है, बचा हुआ है, वो भी चला जाएगा। Be intelligent, be wise, be mature, be balanced mentally. Taurus people, you're very calm. By nature, you're very calm. Then why are you losing this balance? A bull's anger is tremendous. लेकिन अल्टीमेटली इससे ये हानिकारक आपके लिए ही तो हो रहा है ना, isn't it? ये हानिकारक किसी और के लिए हो ना हो, सबसे पहले आपके लिए हो रहा है।
Take care of that fact, my dear Taurians. So satisfy your soul, hydrate your soul, hydrate your spirit. प्यास लगता है तो हम लोग पानी पी के अपने आप को संतुष्ट करते हैं, isn't it? जब तक ना पानी पिए तब तक कैसा लगता है, जैसे प्राण निकल जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी. इतना ज़्यादा थर्स्टी हम लोग फील करते हैं. थर्स्ट इतना होता है, गर्मी से बाहर से आते हैं तो ऐसा कुछ. सो उसी तरह से अपने माइंड को हाइड्रेट कीजिए. बिकॉज सिंस यू आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल वरीज, अपने माइंड को हाइड्रेट कीजिए. माइंड को हाइड्रेट करना मतलब सोल को सेटिस्फाई करना, स्पिरिट को सेटिस्फाई करना, जिससे आपको सुकून मिले, शांति मिले. लड़ाई झगड़ा करने से आपको शांति नहीं मिलेगा. मैं फिर से कह रही हूँ. सो पे हीड टू द गाइडेंस दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू, माय डियर टॉरियंस. सेटिस्फाई योर सोल, सेटिस्फाई योर स्पिरिट, hydrate your spirit, nurture your soul. Food for the soul. हम लोग फूड फॉर द बॉडी के लिए सिर्फ ध्यान देते हैं, लेकिन फूड फॉर द माइंड, फूड फॉर द सोल के लिए भी उतना ही ध्यान देना है. रैदर मैं बोलूँगी उससे ज़्यादा, क्योंकि ये माइंड ही है जो आपके लाइफ को रन करता है, रूल करता है, आपसे करवाता है सब कुछ. सो nurture your soul, nurture your spirit, satisfy your mind, and you will get the peace, my dear Taurus people. Moving on to the next card, it says messages, reunion, connection, validation. सोल ग्रुप्स, मैसेजेस, रीयूनियन, कनेक्शन, वैलिडेशन. सबके साथ कनेक्ट करके रहिए. अगर आप जजमेंट करेंगे, जज करेंगे एक दूसरे को, तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा ना. क्या वाइब्स अच्छे होंगे उनके प्रति? बताइए आप. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप जो लोग जजमेंटल होते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों है, उसने उसको ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे बाद में आ जाता है, पहले तो उसने उसको ऐसा क्यों बोला, अरे नहीं बोलना चाहिए. जाने दीजिए, छोड़िए. लिव इट एंड लेट गो. तभी आप शांति पाएंगे, तभी आप सुकून पाएंगे. लिव and let live, and please practice the habit of letting go. It is highly needed in your case, my dear Taurus people. It is highly needed in your case. Divine guidance karma भी बोल रहा है from your karmic account, never judge anyone, क्योंकि ऐसे आप peaceful नहीं रह पाएंगे, कतई नहीं. Build a connection with everybody, you know, a beautiful relation, a beautiful connection with everybody. See, यहाँ पे भी रिलेशनशिप की बात आई थी ना. मत लड़िए, रिलेशनशिप को ये अहमियत दीजिए. मैंने लास्ट टाइम एक लाइव किया था मेरे इंस्टा चैनल पे, वो अभी भी सेव किया हुआ है. मैंने ऑलरेडी उसे सेव करके रखा है. आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें कहा है कि एक रिलेशनशिप को सुंदर रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स उसमें डालना पड़ता है, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें ज़रूरी है, तब जाके वो रिलेशनशिप सुंदर, मजबूत, टिकाऊ होता है. किसी को अगर वैलिडेट करना है, यहाँ पे वैलिडेशन की बात आई है, किसी को अगर वैलिडेट करना है तो उसे विदाउट जजमेंट कीजिए. एक्सेप्ट एज द पर्सन इज, वेदर इट्स ही, वेदर इट्स शी. एक्सेप्ट एज द पर्सन इज, वही असली वैलिडेशन होगा कि आपने उसे उसके रूप में कबूल किया. दैट इज व्हाट वैलिडेशन मीन्स.
और अगर सेल्फ वैलिडेशन की बात है तो आप खुद अपने आप को वैलिडेट कीजिए। दूसरों के वैलिडेशन के ऊपर खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड मत कीजिए। इज इट? खुद के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करके मत रहिए, सॉरी, दूसरों के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करके मत रहिए। खुद देखिए, जानिए, पहचानिए अपने आप को, वही आपका वैलिडेशन होगा इफ़ इट कम्स टू योर ओन सेल्फ। एंड इफ इट कम्स इन द केस ऑफ अदर्स, then let that person be as he or she is. Live and let live. This should be your mantra, Taurus people, your mantra for life. तभी reunion possible है, कनेक्शन सुंदर होगा तभी, अदरवाइज रिलेशनशिप भी बिगड़ जाएंगे, शांति भी चली जाएगी, which I already mentioned previously. Okay? So this was your reading. Satisfy your soul, satisfy your spirit, nurture your mind. बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी नर्चर कीजिए, सुंदर सुंदर चीज़ें जो आपको पसंद है वो कीजिए। यू नो, डेवलप ब्यूटीफुल क्वालिटीज़, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जो आपको पसंद है, आपके हॉबीज़ है उन्हें नर्चर कीजिए। उन सब हॉबीज़ को फिर से दोबारा कीजिए। अगर आप बंद कर दिए हैं सालों सालों से करना, तो हॉबीज़ आर ग्रेट थिंग्स, हॉबीज़ आर ग्रेट थिंग्स, आई मस्ट से। सो आई होप यू गॉट द गाइडेंस, Taurus people. Do whatever is needed in a very practical, grounded, matured and balanced way. Taurus are very practical, they are not very emotional. तो आप क्यों ऐसा इमोशनल हो रहे हैं? कंपटीशन, ये वो जजमेंट, व्हाई? नो, प्लीज डोंट डू दैट। रिटेन योर पीस माय डियर, इट्स योर्स, डोंट लूज इट लाइक अ फूल, डोंट लूज इट। ओके, so take care, Taurus people. See you in my next reading. Till then, take care, bye bye, and wish you all the best.